Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So this is our lecture number 5, chapter number 12, electrostatics, and in this lecture I am going to discuss the problems on the capacitors, and this lecture and the capacitor lecture will be included in the 3 lectures. So this is the part 1 of the capacitor lecture. Okay class, so these are the all numericals of the topic capacitors, and it contains almost 9 to 10 numerical over there, you can see. So I have categorized these numerical into 3 category, and in this lecture I am going to solve the first category, which is the dark green color. This is our first category, and our second category is the category with the light blue color. It contains too much numericals and lengthy numericals over there. And the third category is with the yellow color. So the numerical number 23 will also be included in the category 3 with the yellow color. It's a difficult one numerical, so we will do all these numerical in these 3 lectures, lecture 5, 6 and 7. But in this lecture number 5 I will solve the problem 20, 24, 25. Okay. So in this slide I am going to discuss the all formula of the capacitor. So the general equation for the capacitance of a capacitor is Q is equal to CV, where Q is the charge on the plates of the capacitor having unit coulomb, and V is the potential difference in volt, which is applied by the battery or source, and C is the capacitance of a capacitor represented by variable C, and it's measured in farad, in microfarad or in picofarad. So farad is a big unit, so we will solve all the numericals in the microfarad or picofarad. So if we equate this equation Q is equal to CV for C, then we get C is equal to Q upon V. So this is the general or basic equation of the capacitance of any capacitor. But in this our course, our second year class, we will deal with majority with the parallel plate capacitors. So now I am coming towards the equations of the parallel plate capacitors. So now equation for C capacitance of a parallel plate capacitor is C is equal to A epsilon naught over D, where A is the area of the plates and epsilon naught is the permittivity of free space or air, and D is the distance between the plates of parallel plate capacitor. Okay, and these are the descriptions of these all variables and the other variables which I include in the next step. So A is the area of the plate measured in meter square, D is the distance or separation between the plates, E naught is the permittivity of air or free space, value is constant,
8.85 exponent minus 12 coulomb square per Newton meter square. And similarly, the equation for the capacitance of a parallel gate capacitor in the presence of medium rather than air. If medium is rather than air or except air, some other medium is lying between the plates of the capacitor, parallel plate capacitor, then its capacitance equation will become C prime is equal to A epsilon naught over D multiplied by ER, epsilon naught R. Epsilon naught R is a dielectric constant of that medium, and its value depends on the nature of a material or that medium, which is placed instead of air. And the third one is the equation of C for a compound capacitor. So for a compound capacitor, its equation will become C double prime or C prime is equal to A epsilon naught divided by D minus T plus T upon ER. If the space between the dielectric medium is filled partially, then such type of capacitor is called compound capacitor, and its thickness of that medium with same area of the plate, but its thickness is different, little bit less as compared to the thickness between the distance between the plates D. तो यहाँ पर थिकनेस जो होती है वो कम होती है, इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं डायग्राम के तौर पर. तो ये इसकी कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अलावा. सो दीज आर द इक्वेशंस व्हिच आई एम गोइंग टू यूज़ in these numericals. Now the combination of capacitors, the first combination is series combination. Here you can see that the three capacitors are connected in series with the potential difference of a battery V having charge of the battery is Q. Okay, so we can solve these three capacitors to find out its equivalent single capacitor, which is C. So the total capacitance or equivalent capacitance is capital C over there. Its value can be determined by using reciprocal of the all capacitor. Then you can determine the capacitance of the series combination, and the total charge which is getting out from the battery or source. So this amount of charge in series combination, you know very well the amount of current or amount of charge remains same. So the same amount of charge will resides on the Q1 plate, on the C1 plate, on the C2 and on the C3 plate. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बैटरी का चार्ज निकलेगा वही चार्ज कैपेसिटेंस 1 की प्लेट्स पर आएगा, कैपेसिटर 2 की प्लेट पर भी आएगा, कैपेसिटर 3 की प्लेट पर भी आएगा. यानी Q जो है वही Q1 के बराबर होगा, वही Q2 के बराबर होगा, वही Q3 के बराबर होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल में यूज़ होगी बार बार. तो आपने देखना होगा कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वहाँ पे चार्ज की अमाउंट जो है वो सेम रहेगी और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी करेगा, डिफरेंट रहेगा. लेकिन जैसे V को आप देख रहे हैं, V जो है V1, V2 और V3 में टूट रहा है, लेकिन V1, V2 और V3 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर आएगा. ओके, सो रिमेंबर दैट C इज़ द टोटल कैपेसिटेंस, Q इज़ द टोटल चार्ज ऑफ द बैटरी and V means total potential difference of the battery or source. For total or final potential difference V in series combination, that is V is equal to different, you know very well, potential will be drop over there, but the sum of all potential across the ends of the capacitors will be equal to the total potential difference of the battery. तो V जो है वो V1 plus V2 plus V3 के बराबर आएगा, and but the charge of battery will be same for capacitor 1, capacitor 2 and capacitor 3. तो series combination में remember this thing that जो charge है हमारे पास वो same रहेगा, लेकिन potential difference जो है वो क्या करेगा, vary करेगा. Okay, similarly in the parallel combination, so in the parallel combination total capacitance C can be determined by adding directly capacitance of the parallel plate, capacitance of the all capacitors C1 plus C2 plus C3. Okay, so in the parallel combination of the capacitors, the equivalent capacitance can be obtained by adding directly C1, C2 and C3. We will get the direct equivalent or total capacitance. Here again total charge is Q, which is moving from the battery, and this charge will be divided over there. So here charge or current can be divided. You know very well that in parallel combination current will be divided according to the paths. So here charge will also divide it according to the paths. So but the net charge,
सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q जो है वो डिफरेंट रहेगा, Q1 पे अलग जाएगा, Q2 पे अलग जाएगा, Q3 पे अलग जाएगा, डिपेंड करता है उनके कैपेसिटर्स किस नेचर के बने हुए हैं। सही है, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन हमें ये पता है कि इन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इनको सम करेंगे तो इन तीनों की सम जो है वो बैटरी के चार्ज के बराबर आएगा, बट द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी डिफरेंट फॉर ऑल कैपेसिटर. So which thing is remain constant over there? So in parallel combination potential difference is remain constant. जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही C1 के अक्रॉस मिलेगा, वही C2 के अक्रॉस मिलेगा, वही C3 के अक्रॉस. So V is same over there because here combination is parallel. So V can be written as V1 is equal to V2 is equal to V3. All are equal to V. V is the potential of a battery. Q is the charge taking out from the battery, and C is the total capacitance of all three capacitors. Okay, so these are the formula which I am going to use in these numericals. Okay class, so this is our third category in lecture number 2. I am discussing problem number 17. It has come in 2014. A 20 microfarad capacitor is charged to a potential difference 220 volt. It's then disconnected from a battery. Its plates are then connected to a parallel plate another capacitor, and it's found that potential difference fall to 100 volt. What is the capacitance of that second capacitor? Class, so first of all, this is the answer of this numerical. 12 microfarad or 12 exponent minus 6 farad. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग इस डेटा. तो यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है और उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज किया गया है, 220 वोल्ट पर चार्ज किया गया है. अब इससे हमें C1 पता है, V1 पता है, तो हम इसका चार्ज Q1 फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर एक और हमारे पास कैपेसिटर है C2 जिसकी कैपेसिटेंस हमें नहीं पता, और जब इस कैपेसिटर को हम इससे डिस्कनेक्ट करके, जिससे भी बैटरी से हमने लगाया था 220 वोल्ट की, डिस्कनेक्ट करके जब हम इस सेकंड कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर देंगे उसको, तो इन दोनों कैपेसिटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा नेट, वो कितना आएगा, 100 वोल्ट. ओके, तो ये 100 वोल्ट हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है. So first of all, I am finding the Q1. So you know, for Q1, Q is equal from the equation of capacitance, Q is equal to CV. तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 मल्टीप्लाई बाय V1. तो C1 V1 की वैल्यूज़ रखने पर हमारे पास Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2200 एक्सपोनेंट माइनस 6 फैराड आ जाएगी. मैंने डायरेक्ट रखी है वैल्यू, मैंने मल्टीप्लिकेशन दिखाई नहीं है. 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रो, देन इट विल बी इक्वल टू 2200 माइक्रो कूलम. Okay, so this is the diagram of this first capacitor. So here we have a first capacitor having charge Q1 having potential difference 220 volt. Okay, तो ये हमारे पास डायग्राम नंबर 1 कहलाएगी. यहाँ पर अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हम इस कैपेसिटर को इस बैटरी से हटाकर दूसरे कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसी की कैपेसिटेंस हमें मालूम करनी है. वही क्लास, यहाँ तक बात समझ में आ गई. तो मेरे पास C1 था, मेरे पास V1 था, उसकी मदद से मैंने इसका Q1 निकाल लिया कि इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है. ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस डिटेल्ड डायग्राम. सो अगेन हियर वी हैव अ फर्स्ट डायग्राम दैट वी हैव अ कैपेसिटर C1 है जिस पर चार्ज Q1 है, जिसकी अमाउंट हम मालूम कर चुके हैं, और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट है. फिर डायग्राम 2 में हमने क्या किया कि सेकंड स्टेप जो बताया गया सवाल में कि हम इस कैपेसिटर को, जो रेड से बना हुआ नज़र आ रहा है, इस रेड कैपेसिटर C1 को हम एक दूसरे कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर देंगे जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2. ठीक है, अब होगा क्या, जब हम इसको से ज्वाइन कर देंगे तो सवाल में से कोई बात नहीं लिखी हुई कि कैपेसिटर 2 पर कोई चार्ज था या नहीं था, तो मान लेते हैं कि अनचार्ज कैपेसिटर है. तो उससे होगा क्या कि जो C1 का ही कुछ चार्ज इस C2 पर जाएगा. अब C1 के पास पहले चार्ज कितना था, Q1 था, लेकिन अब उसके पास उतना चार्ज नहीं रहेगा. अब इसके पास जो नया चार्ज आ जाएगा वो आएगा Q1 प्राइम, और Q1 प्राइम Q1 से कम होगा. अगर Q1 आपके पास 2200 माइक्रो कूलम है तो ये हो सकता है 2200 से कम होगा. ओके,
यानी कि कैपेसिटर 2 पर जो चार्ज गया है वो Q1 में से ही कुछ टुकड़ा उसका वहाँ पर गया है। अब कितना गया है, आधा गया है, आधे से ज़्यादा गया है, आधे से कम गया है, ये हमें नहीं पता। वो हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें कैपेसिटर 2 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर C2 भी चार्ज हो गया है तो उसको चार्ज को हम क्या कह रहे हैं, Q2 कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रहे कि Q1 प्राइम और Q2 इन दोनों का जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का चार्ज Q1 के बराबर होगा, क्योंकि अब बाहर से तो कोई चार्ज आया नहीं है। कैपेसिटर 2 जो है वो खुद ब खुद चार्ज हुआ, किसकी मदद से, क्योंकि उसने कुछ चार्ज C1 कैपेसिटर से ले लिया। उसके पास 2200 था, 2200 से कम हो गया। अब कितना कम हो गया ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि Q1 प्राइम और Q2 को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज यहाँ पर 2200 माइक्रो कूलम ही रहेगा। ओके, ये बहुत अहम बात है, इसको याद रखिएगा। और फिर इन दोनों के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ, 100 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ बेटा, 100 वोल्ट। अब इस कंडीशन पे हमें क्या मालूम करना है, हमें C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि टोटल चार्ज जो है Q1 के बराबर होगा, और वो किस किस में डिवाइड हुआ है, Q1 प्राइम में और Q2 में डिवाइड हुआ है। कितना डिवाइड हुआ ये नहीं पता, लेकिन टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास जो हमने निकाली है, 2200 माइक्रो कूलम, या 22 एक्सपोनेंट -6 कूलम। ओके, अब क्योंकि दो कैपेसिटर C1 और C2 आपस में पैरेलल में लगे हुए तो हम इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। यू नो, फॉर टोटल कैपेसिटेंस C, इनकी टोटल कैपेसिटेंस को हम C का नाम देंगे, इनके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V का नाम दिया है, जो कि 100 पोटेंशियल है। ओके, नाउ इन डायग्राम 3 हम इस C1 और C2 को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। उसके कैपेसिटर क्या कहलाएगी, C कहलाएगी। उस कैपेसिटर पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, 100 वोल्ट बनेगा। कितना बनेगा, 100 वोल्ट। और इस कैपेसिटर पर जो टोटल चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आएगा, वो चार्ज वही होगा जो शुरू में हमने QC1 का निकाला था। ओके, तो टोटल चार्ज यहाँ पर Q1 ही रहेगा, ये बात याद रखेंगे आपने। ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग फॉर टोटल कैपेसिटेंस, बिकॉज टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 = CV। अब हम इसके ऊपर आते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन में। यहाँ तक आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी। दोबारा मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू दे रहा हूँ, सुन लीजिए। पहले हमारे पास डायग्राम 1 में एक कैपेसिटर C1 था जिसके कैपेसिटेंस हमें गिवन थी, उसका चार्ज नहीं पता था, उसको हमने 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, उस पर कुछ चार्ज आ गया। उस चार्ज की अमाउंट कितनी है, 2200 माइक्रो कूलम। फिर इस कैपेसिटर को, उस डायग्राम 1 को आप हटा दें, डायग्राम 1 अब हमें ख़त्म होगी। फिर हमने इस कैपेसिटर को किसी दूसरे कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर दिया जिसकी कैपेसिटेंस हमें नहीं पता, और इसे बैटरी से नहीं लगाया, ये बात नहीं लिखी हुई। तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क बना, अब कितना बन गया, ड्रॉप 100 हो गया पे। और इसी का कुछ चार्ज C1 पर जो चार्ज था Q1, उसका कुछ चार्ज जो है वो Q2 पर चला गया, तो अब C1 के पास कितना चार्ज रह गया, Q1 प्राइम रह गया। अब 2200 तो नहीं होगा उसके पास, कुछ उससे कम हो जाएगा 2200 से। ओके, तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखेंगे, उसकी मदद से हम C1 C2 की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात याद है कि अब C1 के पास चार्ज कितना है, Q1 प्राइम है, और C2 के पास चार्ज कितना है, Q2। अब C1 के पास Q1 चार्ज नहीं है, हाँ, लेकिन जो टोटल फाइनल कैपेसिटेंस आई है उस पर टोटल चार्ज, इन दोनों कैपेसिटेंस C1 C2 को अगर मिला के बात करें, इन दोनों पर चार्ज कितना होगा, Q1। ओके, ओके, नाउ इन द सॉल्यूशन फॉर C2 फ्रॉम डायग्राम नंबर 2, हम डायग्राम नंबर 2 को देखेंगे। डायग्राम नंबर 2 में यूजिंग इक्वेशन फॉर C फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। So you know that in parallel combination capacitors will be add directly। तो टोटल कैपेसिटेंस C किसके बराबर आएगी, C1 और C2 को आप ऐड कर दें। ठीक है, हमें यहाँ से C2 फाइंड करना है, क्योंकि C1 की वैल्यू भी नहीं पता हमें, C1 पता है, C की वैल्यू भी नहीं पता और C2 की वैल्यू भी नहीं पता। लेकिन हम C की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ चुका है, टोटल चार्ज भी हमें पता है, हम निकाल सकते हैं। C1 की वैल्यू हमें पता है, तो हम इस इक्वेशन को C2 के लिए इक्वेट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। फिर हम यूज़ करेंगे फॉर C। तो सो यू नो वेरी वेल डैट फॉर टोटल कैपेसिटेंस Q = CV। लेकिन यहाँ पर टोटल चार्ज Q है, टोटल कैपेसिटेंस C है, टोटल वोल्टेज भी है, लेकिन इन दिस न्यूमेरिकल आवर टोटल चार्ज इज Q1 = CV। तो
तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकालेंगे Q1 डिवाइड बाई V। Q1 22 माइक्रोकूलम है डिवाइड बाय 100, V जो है 100 है हमारे पास। तो यहाँ से हमें C की वैल्यू कितनी मिल गई 22 माइक्रो फैराड और 22 एक्सपोनेंट -6 फैराड। तो ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। C1 की वैल्यू हमें पता है, तो इसको इक्वेशन 1 में रखने पर पुट इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट आवर फाइनल कैपेसिटेंस C2 इज इक्वल टू 12 माइक्रो फैराड और 12 एक्सपोनेंट -6 फैराड। ओके, तो यहाँ से हमें कैपेसिटर 2 की कैपेसिटेंस मिल गई। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमने टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग फाइंड कर ली, उसे इक्वेशन C2 के लिए इक्वेट कर लिया। वैल्यूज़ रखने पर हमें C2 मिल गया 12 एक्सपोनेंट -6 फैराड। ओके, so this numerical is also similar to the last numerical। यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर जो कि 12 माइक्रोफैराड का है, जिसको हमने 100 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा Q1। उसकी वैल्यू हम Q1 इज इक्वल टू C1 V1 से फाइंड कर सकते हैं। अभी उसकी फाइंड की जाएगी वैल्यू। और एक और कैपेसिटर है C2, फिर हम इस कैपेसिटर C1 को इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर कर C2 के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इनका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा इन दोनों कैपेसिटर का 60 वोल्टेज। तो हम यहाँ से अगर Q1 की वैल्यू निकालना चाहें तो फॉर Q1 यू नो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 which is equal to 12 microcoulomb. So in the diagram here you have a capacitor C1 with charge Q1 having potential difference V1. This is our diagram number 1। तो यहाँ से आपने Q1 की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आई वो 1200 माइक्रोकूलम। ओके, now again I am discussing the diagram in detail। Here we have a diagram 1 where capacitor C1 है, जिसके पे कितना वोल्टेज दिया गया है 100, जिससे हमने इसका टोटल चार्ज निकाल लिया जो कितना आया था 1200। फिर हमारे पास डायग्राम नंबर 2 आ गई। अब हम इस कैपेसिटर को एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस सेकंड कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, तो ये Q1 का चार्ज ही कुछ टुकड़ा अपने पास ले लेगा, और अब C1 पर चार्ज कितना रह जाएगा Q1 प्राइम, जो कि Q1 से कम होगा। और जो यहाँ से चार्ज चला गया C2 के ऊपर, उसको हम Q2 कह देते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला वो कितना मिला 60 वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो यहाँ पर भी Q1 प्राइम और प्लस Q2 के बराबर होगा, और Q1 की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं। Okay, so keep in mind the total charge in this circuit diagram is Q1, total potential is 60 volt, and total capacitance can be determined in the third diagram। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस C है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है आपके पास जो कि 60 वोल्ट है। सो इन डायग्राम 2 C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कर कर एक कैपेसिटर बना लेंगे, ठीक है, जिसको हमने C का नाम दिया। उसका वोल्टेज कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट डायग्राम 3 में टोटल कैपेसिटेंस C है, टोटल चार्ज Q1 है जो हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट्स। ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड इस सोल्यूशन। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल की तरह है, उसको देख लीजिए, इसको मैंने और डिटेल में समझाया है। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। ओके, नाउ इन द सोल्यूशन फॉर C2 फ्रॉम डायग्राम 2 वी यूज द equation of the combination of the capacitor। So in the parallel combination you know capacitance will be added directly, C1 C2 ऐड हो जाएंगे, और C इनका जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है। तो हम इस इक्वेशन को C2 के लिए इक्वेट कर लेंगे, C माइनस C1 इज इक्वल टू C2। सिमिलर टू द लास्ट न्यूमेरिकल इक्वेशन 1 रख दिया इसको। फॉर C you know very well Q is equal to CV, where Q is total charge, C is total capacitance, and V is total potential difference। But here our total charge is Q1, so I can write this equation Q1 is equal to CV। इक्वेट किया C के लिए तो Q1 अपॉन V हो गया। वैल्यूज़ रखने पर हमारे पास C कितना आ गया 20 एक्सपोनेंट -6 फैराड और 20 माइक्रो फैराड। इसे इक्वेशन 1 में रखा आपने। इक्वेशन 1 में C की वैल्यू 20 आ गई, और C1 आपको 12 माइक्रो गिवन है, मल्टीप्लाई बाय, सो वी विल गेट आवर आंसर
is 8 माइक्रोफेराड और 8 एक्सपोनेंट -6 फेराड। तो ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरह सिमिलर था, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके so this numerical number problem 22, it has come in 1997. So this numerical is also similar to numerical number 17 and 18. So I am moving little fast in this numerical, in this explanation. So you can see numerical number 17 again, so you can do this numerical easily. So again you have a capacitor C1 with 200 picofarad. Pico means exponent -12 farad, having potential difference, it's charged to a potential difference 100 volt. So its Q1 can be determined by multiplying C1 and V1. Okay, then this capacitor is disconnected and joined with another capacitor C2. We have to find the capacitor of that C2, and the potential will be developed between the both capacitor is 60. Okay, 60 volt. So Q1 can be determined by multiplying C1 and V1. So we will get 20,000 micro or pico coulomb. Okay, or 20,000 exponent -12 coulomb. So this is the total charge of this whole circuit of this whole numerical. यहाँ पे टोटल चार्ज Q1 रहेगा, यू नो वेरी वेल। तो इसकी अगर मैं C1 की डायग्राम बनाऊँगी, कैपेसिटर C1 को जो है हमने कितने 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था या सेल से कनेक्ट किया हुआ था, इस पर चार्ज Q1 आया, उसकी अमाउंट हमने निकाल ली है। ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स दिस डायग्राम नंबर 2 और 3 in detail. So in diagram number 1, you know that capacitor C1 having charge Q1 when it is connected with potential 100 volt V1. Okay, now it will get 20,000 pico coulomb charge over there. So Q1 is given. So we have determined the Q1 over there. तो Q1 जो है वो टोटल चार्ज रहेगा सर्किट पे। फिर इस कैपेसिटर को हमने क्या किया, हमने इस कैपेसिटर को एक और किसी अननोन कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, जिससे हुआ क्या कि इसका कुछ चार्ज C2 पे चला गया और इसका अपना चार्ज Q1 के बजाय Q1 प्राइम हो गया, और जो C2 पर चार्ज गया है उसको हमने Q2 मान लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 प्राइम प्लस Q2 किसके बराबर होंगे, Q1 के बराबर होंगे। Q1 प्राइम प्लस Q2 Q1 के बराबर, क्योंकि बाहर से कोई चार्ज नहीं आया, ये चार्ज जो Q2 C2 के पे गया है, सेकंड कैपेसिटर पे जो चार्ज गया है वो Q1 का ही कुछ हिस्सा गया है। ओके, तो अब C1 पर चार्ज कितना हो चुका है Q1 प्राइम, और C2 पर चार्ज कितना है Q2, और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो क्या है आपके पास 60 वोल्ट। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है सर्किट का Q1 के बराबर है, और वो Q1 प्राइम प्लस Q2 वो कितना है, वो लास्ट आपको गिवन है 20,000 पिको कूलम। ओके, एंड टोटल कैपेसिटेंस C, दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस इक्वेशन। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर V 60 वोल्ट। सो इन डायग्राम 3 we solve this C1 and C2 and determine its equivalent capacitance C. So C1 C2 का equivalent capacitance क्या आया बेटा, C आया है, जिसका पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट, जिस पर चार्ज कितना है Q1। तो नेक्स्ट में हम स्लाइड में हम इसका सोल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहले हम इसकी टोटल कैपेसिटेंस की इक्वेशन सॉल्व करके C2 के इक्वेट करेंगे। ओके, नाउ इन द सोल्यूशन for C2, you know from the diagram that from the equation of equivalent capacitance of parallel combinations, so C बराबर होता है C1 प्लस C2 के। C2 के लिए इक्वेट कर दिया आपने इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1। फिर फॉर C यू नो Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे Q जो है वो Q1 के बराबर है, Q1 इज इक्वल टू CV, देन C इज इक्वल टू Q1 अपॉन V। आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज यू विल गेट योर C equivalent total capacitance 333.33 pico farad. Okay, now put this value in equation 1, you will get C2. So equation 1 में रखने पर हमारे पास you will get our C2 is 133.33 pico farad और 133.33
33 exponent minus 12 farad. So this is the answer of this numerical. Okay. Okay, now this is our problem number 23. It's a difficult numerical. Okay, so question 17, 18 and 22 both are the numerical, all are the numerical of same nature. क्वेश्चन 17 को डिटेल में देख लीजिएगा तो आपको सारे नंबरिकल समझ में आ जाएंगे. 17 की तरह का 18 है और 22 भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है. बट दिस नंबरिकल इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट डिफरेंट. सो प्रॉब्लम नंबर 23 इट हैज़ come in 1995. So two capacitors of capacitance 4 microfarad and 6 microfarad are charged to a potential difference 300 volt and 400 volt. तो यहाँ पे दो कैपेसिटर 4 माइक्रोफेराड को 300 वोल्टेज की बैटरी से चार्ज किया जा रहा है और 6 माइक्रोफेराड को 400 वोल्ट की सोर्स से चार्ज किया जा रहा है. देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. फिर इन दोनों को आपस में पैरेलल लगा दिया गया. अब इनके दरमियान जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना और जो चार्ज आया ईच कैपेसिटर्स पर, वो आपने फाइंड करना है. पहले उन पर चार्ज Q1 Q2 होगा, बाद में जब आप पैरेलल लगा देंगे तो वो Q1 Q2 की जगह Q1 प्राइम Q2 प्राइम हो जाएगा. थोड़ा बहुत किसी में से कमी आएगी, थोड़ा बहुत किसी में इजाफा होगा, इस तरीके से. तो इसको डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल. सो इन द डेटा फॉर C1 इज़ 4 माइक्रोफेराड, its V1 is 300 volt, so its Q1 can be become C1 multiplied by V1 1200 माइक्रोकूलम. तो Q1 हमारे पास कितना आ गया बेटा 1200 माइक्रोकूलम. ये हमने यही फाइंड कर लिया डेटा में. ओके. सिमिलरली इसकी डायग्राम देख लीजिए. डायग्राम 1A का नाम दिया गया है. सो वी हैव अ कैपेसिटर C1 हैविंग चार्ज Q1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 300. ओके. तो इस पर हमारे पास Q1 कितना आया है 1200 माइक्रोकूलम और एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम. सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर 6 माइक्रोफेराड का है. इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया जा रहा है इसको 400 वोल्ट एंड इट विल गेट चार्ज ऑफ 2400 माइक्रोकूलम. इस पर चार्ज कितना आ जाएगा 2400 माइक्रोकूलम. इसकी डायग्राम देख लें. डायग्राम 1B. यू हैव अ सेकंड रेड कैपेसिटर. पहले वाला ब्लू कैपेसिटर है, ये रेड कैपेसिटर है. इस पर चार्ज Q2 आया, इसको पोटेंशियल कितना दिया गया है 400 वोल्ट्स. ओके. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यूमेरिकल. अब हम डायग्राम को ज़रा डिटेल में देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है न्यूमेरिकल में. ओके. सो इन डायग्राम 1A you know that we have a capacitor C1 with potential difference V1 300 volts and we have diagram 1B. We have a capacitor C2 having voltage 400 volts. Okay, having charge Q2. ओके. नाउ अब इन दोनों कैपेसिटर को इनकी 300 और 400 की सोर्सेज से डिस्कनेक्ट कर आपस में कैसे जोड़ दिया गया है. इस कैपेसिटर C1 और इस कैपेसिटर C2 को आपस में बेटा कैसे जोड़ दिया गया है पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है. अब इससे होगा क्या कि इनके चार्जेस जो पहले Q1 Q2 थे, अब इनके चार्जेस थोड़ा बहुत एक जगह से मूव करेंगे. इस कैपेसिटर का चार्ज हो सकता है उस पर चला जाए या इसका चार्ज इस पर चला जाए. डिपेंड करेगा इनके नेचर ऑफ मटेरियल पर और इनकी एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी पर कि कितना चार्ज एक्सेप्ट कर सकते हैं. ओके. तो अब इस पर चार्ज आ गया Q1 प्राइम, इस पर चार्ज आ गया Q2 प्राइम. ओके. लेकिन इन दोनों का टोटल चार्ज जो है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर ही हो गया. हमें टोटल चार्ज अगर फाइंड करना है कि सर्किट में कितना है तो Q1 Q2 को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा. वही टोटल चार्ज Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम के बराबर भी होना चाहिए. अगर Q1 प्राइम और Q2 प्राइम को हम ऐड करें तो वही चार्ज आना चाहिए. ओके. और इनके दरमियान कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ या बना, वही आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है कि टोटल चार्ज की वैल्यू हमारे पास मौजूद है. सो टोटल चार्ज से Q जो कि Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम के बराबर भी हो सकता है और Q1 प्लस Q2 के बराबर भी है. तो हम वैल्यू तो Q1 प्लस Q2 से ही निकालेंगे, फिर बाद में जाके Q1 प्राइम और Q2 प्राइम में उसे प्लेस कर देंगे. ओके. So here two capacitors are in parallel combination, so we can determine its total capacitance C.
एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V हमें यहाँ पर फाइंड करना है। बेसिकली हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो बाय यूज सॉल्विंग दिस डायग्राम, सो कैपेसिटर C1 एंड C2, अगर हम C1 C2 को आपस में सॉल्व करें, इनका इक्विवेलेंट निकालें, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आ गया Q, जो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। आई टोल्ड यू कि टोटल चार्ज सर्किट में उतना ही रहा जो पहले बैटरी से चार्ज लिया गया था, Q1 प्लस Q2 के बराबर। ओके, और टोटल वोल्टेज आपको यहाँ फाइंड करना होगा। तो आपको C1 अगर C2 पता है तो उससे आप C निकाल लेंगे, C आ जाएगा, उससे आपके पास टोटल चार्ज भी आपको पता चल जाएगा, और फिर C और Q मिलने पर आप भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर दोनों कैपेसिटर्स को पहले बैटरी से कनेक्ट किया गया, उन पर कुछ चार्ज आया, एक पहले वाले के चार्ज को Q1 कहा गया, दूसरे वाले के चार्ज को Q2 कहा गया। फिर इन दोनों कैपेसिटर्स को डायग्राम नंबर 2 में आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया, जिससे इनके चार्जेस की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुई। ठीक है, किसी में से चला गया, किसी में आ गया, लेकिन टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 ही रहा। और डायग्राम 2 पर इनके चार्ज की शिफ्टिंग की वजह से कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिए, कैपेसिटेंस हमेशा वही रहता है। कैपेसिटेंस चेंज करने के लिए आपको एरिया, डिस्टेंस, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को चेंज करना पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन करने से सिर्फ और सिर्फ चार्ज और पोटेंशियल पे फ़र्क पड़ता है, कैपेसिटेंस पे नहीं पड़ता। तो जिनको जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया तो इनके कैपेसिटेंस तो वही रहे C1 C2, लेकिन चार्जेस में कुछ फ़र्क आ गया और इनका पोटेंशियल जो जनरेट हुआ या जो बना वो हमें फाइंड आउट करें। इनका चार्ज Q1 प्राइम और Q2 प्राइम हो चुका है। तो हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ओके, डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात याद रखिए कि टोटल चार्ज जो है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर है। Q1 भी हमने डेटा में और Q2 भी हमने डेटा में फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो रेड से लिखा हुआ है Q1 प्राइम और Q2 प्राइम भी इसी के बराबर आएंगे, लेकिन इनकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता कि Q1 प्राइम की वैल्यू क्या है। हमें Q1 और Q2 की वैल्यू पता है, जो डायग्राम 1 में मौजूद है उनकी वैल्यूज पता है। ओके, okay, now in the solution for C, you know from diagram number 3, so C will be equal to, in the parallel combination, C1 plus C2, C1 4 माइक्रो है, C2 6 माइक्रो है, तो C कितना आ जाएगा आपके पास 10 माइक्रोफैराड। ओके, नाउ फॉर टोटल चार्ज, यू नो सिंस टोटल चार्ज इज Q, सो Q किसके बराबर होगा Q1 प्लस Q2 फ्रॉम द डेटा 12 माइक्रोकूलम एंड 24 माइक्रोकूलम, सो इट विल बी इक्वल टू 36 माइक्रोकूलम और 36 एक्सपोनेंट माइनस 6 कूलम। ओके, नाउ फॉर V, अब आपको C भी मिल गया, टोटल चार्ज भी मिल गया, टोटल कैपेसिटेंस भी मिल गई, तो Q इज इक्वल टू CV से आप V निकाल लेंगे। सो V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। 3600 माइक्रो से 10 माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो एक्सपोनेंट माइनस 6 की जगह माइक्रो भी रख सकता हूँ, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर 360 वोल्ट्स आ चुका है। तो ये भी एक तरीक़ेकार होता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बार बार एक्सपोनेंट माइनस 6 की जगह माइक्रो रख देते हैं, ताकि सलूशन में थोड़ी आसानी हो जाती है, और ना एक्सपोनेंट रखने से सलूशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो ये भी एक तरीक़ेकार होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन वोल्टेज जब आप निकालेंगे तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल वोल्टेज आ चुका है। अब हमें Q1 प्राइम और Q2 प्राइम फाइंड करना है। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग सुकून से, वीडियो पॉज करके। ओके क्लास, एंड द सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द डायग्राम नंबर 2। डायग्राम नंबर 2 को दोबारा देख लीजिए कि C1 C2 आपस में बेटा कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो जो पोटेंशियल V बना है वही पोटेंशियल जो है वो C1 पर भी जा रहा होगा, वही पोटेंशियल C2 पर भी जा रहा होगा। ओके, सो कीप इन योर माइंड दिस डायग्राम। सो इन दिस सॉल्यूशन फॉर Q1 प्राइम from diagram number 2, so Q is equal to CV from the general equation of capacitor, so Q1 प्राइम किसके बराबर हो जाएगा C1 मल्टीप्लाई बाय इट्स वोल्टेज V। यहाँ पे इसका चार्ज Q1 प्राइम है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका वोल्टेज V है। ओके, तो इससे फिर हम इसका आंसर निकाल लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस 6 इंटू 360, विल गेट आवर चार्ज Q1 प्राइम इज़ 1.44 एक्सपोनेंट माइनस 3 कूलम।
or 144 microcoulomb. Similarly, for charge Q2, again from diagram Q, तो डायग्राम 2 को देखते हुए अगर हम देखें तो C2 पर भी जो चार्ज आया है Q2 प्राइम, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस V ही आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q2 प्राइम इज इक्वल टू C2V। जैसे Q इज इक्वल टू CV जनरल इक्वेशन होती है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, Q2 प्राइम बराबर होगा C2 इट्स कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। After placing their value, you will get its answer 2.16 exponent minus 3 कूलम और 216 माइक्रोकूलम। अब इन Q1 प्राइम और Q2 प्राइम को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर Q1 के बराबर ही आएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल। यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड हो गया है। इसको दोबारा अगर समझना हो तो दोबारा से आप वीडियो को देखें ताकि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाए। दोबारा सुन लीजिए, डायग्राम नंबर 2 में दोनों C1 C2 पैरेलल लगे हुए थे, तो उनके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, जो V था, जो हमने 360 वोल्ट निकाल लिया था, उसका चार्ज उस पर कितना आया हुआ है Q1 प्राइम। डायग्राम 2 की बात हो रही है सिर्फ, डायग्राम 2 में चार्ज Q1 प्राइम है, कैपेसिटर C1 है और वोल्टेज V है। डायग्राम 2 के कैपेसिटर 2 पे चार्ज Q2 प्राइम है और वोल्टेज V है। तो उनके फॉर्मूले रख के सिंपल हमने यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड की हैं, तो चार्ज Q1 प्राइम और Q2 प्राइम हमारे पास आ चुका है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ द कैपेसिटर। अब सेकंड कैटेगरी का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, तो उसको मैं लेक्चर नंबर 7 में पूरा कवर करूँगा। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़। And if you need any assistance, any help, you can contact me on my email and on my WhatsApp number. Both are given in the description of the YouTube channel. Okay, Allah Hafiz.